إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ معزز سامعین و سامعات، مالک کی توفیق کے ساتھ اللہ رب العزت کی خاص عنایت کے تحت ایک بار پھر رمضان المبارک کے اس مقدس مہینہ میں ہمارا علم اور معرفت کا یہ سفر جاری و ساری ہے۔ اللہ رب العزت اس میں اخلاص، محبت، پیار، عقیدے کی درستگی اور منزل مقصود تک صحیح طریقے سے پہنچنا ہمارے نصیبے میں کر دے۔ اللہ رب العزت شرمائیں لیکن بندے شرمانے سے گھبرائیں۔ ہمارا یہ آج کا موضوع ہمارے ساتھ چل رہا ہے۔ جب لفظ شرم بولا جاتا ہے تو یہ کئی معانی اور مفاہیم میں چلا جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ میں اس کی دو چار گروپنگ کی کیفیت آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ جب ہم لفظ شرم بولیں تو کبھی اس سے مراد حیا، لاج اور حجاب ہوتا ہے، اور کبھی لفظ شرم دلالت کر رہا ہوتا ہے ننگ پہ، آر پہ اور غیرت پہ، اور کبھی یہ لفظ اس کا مدلول ہوتا ہے خیال، پاس، لحاظ اور مروت، اور کبھی اس سے مراد ہوتی ہے ہچکچاہٹ، تأمل، جھجک، اور کبھی شرم سے مراد ہوتی ہے عزت، حرمت اور آبرو، اور کبھی اس سے مراد ہے خجلت، خجالت، پچھتاوا، خفت، سبگی اور رمیدگی، ندامت، شرمندگی، پشیمانی، اور کبھی اس کے ساتھ بولا جاتا ہے یہ لفظ انفعالی کیفیت پہ، ملامت ہونے پہ اور محجوبیت پہ۔ یہ لفظ جب ہم بولتے ہیں تو عربی میں اس کے مد مقابل جو لفظ آتا ہے اسے حیا کہتے ہیں، اور یہ حیا کا لفظ حیا یا حیاوا اس سے ماخوذ ہے، اور اس کا تعلق زندگی سے ہے۔ عربی لغت کو جب آپ کھولیں گے تو یہ لفظ شرم اور لفظ حیا، اس کے معانی میں سے یہ ہوگا کہ تغیر وانکسار، کہ انسان میں کوئی چینج، کوئی تبدیلی اور اس کی عاجزی، انکساری، اس کا ٹوٹنا۔ یعتری الانسان من خوف ما یعاب به، انسان کو جس چیز کے وجہ سے معیوب وہ نظر آتا ہو اس کی وجہ سے بچتے ہوئے ندامت اور شرمندگی کے خوف سے اپنے آپ کو بچانا۔ اور اصطلاح میں اس کے کئی معانی اور مفاہیم ہیں، لیکن جو قریب تر ہے هو الخلق الذي يبعث ويحمل على ترك القبيح من الصفات والافعال والاقوال ويمنع من التقصير في حق الخالق والمخلوق، کہ یہ وہ کیفیت ہے یا وہ اخلاق ہے جو انسان کو کسی چیز پہ ابھارتا ہے کہ وہ افعال میں، اقوال میں یا معاملات میں جو بری چیزیں ہیں ان سے بچے، اور انسان کو منع کرتا ہے کہ یہ خالق اور مخلوق کے حق کو مارے۔ اس چیز کو حیا کہتے ہیں۔ حیا کا لفظ بہرحال جب ہم بولتے ہیں بے حیائی کے حوالے سے یا حیا کے حوالے سے تو معروف ہے، لیکن میں نے چونکہ اس سے انشاءاللہ العزیز اپنی زندگی کے مختلف پہلوؤں کو چھیڑنا ہے تو ضروری ہے کہ ہم اس کو سمجھ لیں یہ کیا ہے۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو منور فرمائے اور ہر اس شخص کی کہ جس نے علم کی خدمت کی اور اس میں مثبت پہلو کو مد نظر رکھا۔ فرماتے ہیں کہ الحیاء مشتق من الحیات، اگر حیا کو جاننا ہے تو یاد رہے کہ یہ لفظ مشتق ہے، نکلا ہے حیات سے، زندگی سے۔ حیا وہی کرے گا جس کو زندگی اللہ نے دی ہے، جس میں زندگی نہیں ظاہری معنی میں،
या फिर बातनी मानी, दोनों कैफियत में। फ़इन्ना हयातल क़ल्बि हियल मानियतु मिनल क़बाइह अल्लती तुफ़सिदुल क़ल्ब। कहते हैं कि अगर ज़मीर जिंदा है तो यही वो चीज है कि जो दिल की जिंदगी बंदे को उन कभी चीजों से रोकती है जो इंसान की जिंदगी को फसाद में मुब्तला करती है। अगर जिंदगी नहीं तो उम्मीद नहीं। रसूल करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इसी हया और शर्म के हवाले से कहा था, अल हयाउ मिनल ईमान। लोगों, ईमान को देखना हो तो बंदे की शर्म व हया को देखो। और जनाब अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रावी हैं, बुखारी की सही हदीस है कि ईमान के 70 से ज्यादा शोबे हैं और वल हयाउ शुअबतुम मिनल ईमान। ईमान की उन शाखों में से या उसके इजहार के मुख्तलिफ जरिए हैं जिससे पता चलता है कि बंदे में ईमान है, उनमें से एक हया भी है। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अपने बारे में बुखारी के अल्फाज ये हैं, काना, आपको अगर कोई देखना चाहे, जानना चाहे तो रसूल करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम क्या थे? शदीदल हया। आपके अंदर हया इतनी ज्यादा थी, जैसा कि मिसाल भी दी गई कि अगर कंवारी लड़की, आजकल का खैर ये हमारा मेयार अल्लाह करे लौट आए, लेकिन कंवारी लड़की की आजकल शायद मिसाल भी हमसे बहुत दूर चली गई, उससे भी ज्यादा शर्म व हया वाले। और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया था कि लोगों, अल हयाउ ला याती इल्ला बिखैर। हया जहां भी होगा इसमें खैर मिलेगी, अच्छाई मिलेगी, इसमें बुराई का इम्कान नहीं। और आप ही ने कहा था, उसूल बताया था, इज़ा लम तस्तही, जब बंदे में से शर्म उठ जाए, हया कूच कर जाए, तो फिर फसना मा शित, फिर उसके दिल में जो आए उसे कोई रोकने वाला नहीं, जो कर डाले वो कर डाले, उसको कोई लगाम नहीं। सबसे बड़ी लगाम इंसान के लिए हया की होती है। और बुशैर इब्न कअब का कौल है, इन्ना मिनल हयाइ वकारा व इन्ना मिनल हयाइ सकीना। आपने अगर किसी में शर्म व हया देखना हो तो देखिए कि वो अपने वकार का कितना ख्याल रखता है, दूसरों के वकार का कितना लिहाज रखता है। तो ये मीटर है हया को चेक करने का। इन चीजों को तमहीद के तौर पे जान लेने के बाद मैं शर्म की दो किस्में और हया की दो किस्में भी बताता चलूं कि एक वो शर्म व हया है जो मजमूम है, जो बुरा है, गैर मुफीद है, नुकसानदेह है और अम्र माने है। और दूसरी शर्म व हया वो है जो महमूद है, मकसूद है, मुफीद है, इंसान के लिए फायदामंद है और मतलूब है। शर्म व हया की इन मिसालों को मैं अल्लाह रब्बुल इज्जत के हवाले से अहबाब के सामने रखते हुए आगे बढ़ रहा हूं। पहली चीज कि मुआमला इजहार हक हो या प्रचार हक हो या बयान हक हो तो फिर शर्म व हया करना गलत है। अगर हक बात को दूसरों तक कन्वे करना है, सीखना है या सिखाना है, फिर हया अगर की जाएगी, शर्म की जाएगी, तो ये शर्म शर्म नहीं होगी, ये कातिल होगी, नुकसानदेह होगी। और अल्लाह ने इसी पैराए में कहा सूरह अल अहज़ाब में, वल्लाहु ला यस्तही मिनल हक। जहां मुकाम हक का हो फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत शर्माया नहीं करते। और सूरतुल बकरा में अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं, इन्नल्लाह ला यस्तही अन यद्रिबा मतलन मा बऊदा फमा फौकहा। लोगों, अल्लाह ताला जब हक का प्रचार करना चाहें, उसके लिए मिसाल से मकाल को वाजे करना चाहें, तो फिर मच्छर या उससे कमतर या बालातर किसी भी चीज की मिसाल देनी हो तो अल्लाह को ये शर्म नहीं आती कि इतनी छोटी मिसाल मेरी इतनी बड़ी जात। तो अल्लाह हक के मुआमले में शर्माते नहीं है। बंदे को भी अल्लाह ने अपनी फितरत पे बनाया है। बात हक की है, बयान हक का है, प्रचार हक का है, तो फिर शर्म करना, हया करना ये मजमूम होगी, गलत होगी। और दूसरी किस्म, इस शर्म व हया को आपने छोड़ना है और दूसरी तरफ हमने बढ़ना है। अल्लाह रब्बुल इज्जत का मुआमला मखलूक का हो या बंदू का हो, अल्लाह की शान करीमी क्या है। सैयदुना सलमान की ये रिवायत है रसूल करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से, सुनन नबी दाऊद और तिर्मिज़ी में मौजूद है, इन्ना रब्बकुम तबारक व तआला। लोगों, तुम्हारा परवरदिगार और तुम्हारा रब जो कि बुलंदो वाला है, हय्युन करीम, वो बड़ी शर्मों वाला है, वो बड़ी लाज रखने वाला है, वो बड़े पास करने वाला और बड़ी मुरव्वतों वाला है। करीम,
उसके अंदर करम है, बंदू के लिए बड़ी नरमियां हैं। और अल्लाह ताला हयीजुन करीम, रब को शर्म आती है, अल्लाह करम वाला, हया वाला। यस्तही मिन अब्दिही इदा रफा यदैहि इलैहि, कि जब बंदा अपने दोनों हाथों के कशकोल बना के रब के सामने फैला दे तो रब को शर्म आ जाती है। ऐ यरुद्दहुमा सिफरा, कि मैं अपने बंदे के इस कशकोल को खाली लौटा दूं। अल्लाह शर्मा गए, लेकिन बंदा हाथ फैलाने से शर्माए। अल्लाह ताला को शर्म आ रही है कि मैं बंदे का हाथ खाली नहीं मोड़ूं। लेकिन इंसान, तुम्हें कब शर्म आएगी कि तू और मैं मिलके हम अपने हाथ को अपने मालिक और अपने इलाह के सामने फैलाएंगे। हमने हाथ फैलाए लोगों के सामने। और उसूल ये है कि जब बंदू से मांगा जाए तो बंदे नाराज होते हैं, और रब से ना मांगा जाए तो रब नाराज होते हैं। हाँ, इसलिए इस उसूल को मद्देनजर रखते हुए हमें इस शर्म व हया की तरफ बढ़ना भी है। मैं सबसे पहले इस वक्त शर्म के हवाले से जरा हिस्ट्री में जाना चाहता हूं। आदम अलैहिस्सलाम होके, इंसानियत की असास होके उनको शर्म आई, लेकिन आज का आदमी न शर्माया। बुखारी की हदीस है, जनाब अनस रावी हैं, रसूल करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, क्या हुआ है, यातून आदम, इंसान जो है लोग, कयामत का दिन होगा, बड़ा खौफनाक मंजर। आदम अलैहिस्सलाम के पास आएंगे, फयकूलून अंत आदम अबुल खल्क, कि ऐ आदम अलैहिस्सलाम, आपका आदम है, आप लोगों के बाप हैं। खलककल्लाहु बियदी, अल्लाह ने आपको अपने हाथों से बनाया। व नफख फीक मिन रूही, आप में रूह को फूंका। व अमरल मलाइकत फसजदू लक, फरिश्तों को हुक्म दिया और उन्होंने आपको सजदा भी किया। इश्फअ लना इंद रब्बिका हत्ता युरीहना मिन मकानिना हाज़ा, अल्लाह से सिफारिश करो, ये बड़ी सख्ती और तंगी का मुकाम है, अल्लाह हमें यहां से राहत पहुंचा दे। फयकूलु लस्तु हुनाकुम, आदम अलैहिस्सलाम का जवाब शर्म पे मबनी, कहेंगे मैं इस काबिल नहीं। क्यों, क्या हुआ? फयज़कुरु खतीअतुल्लती असाब, उन्हें वो अपनी गलती याद आ जाएगी। वयस्तही रब्बहु मिन्हा, उस गलती की वजह से अपने रब से शर्मा के सर नीचे कर दे। इंसान गलती पे गलती कर रहा है, आदमी को शर्म नहीं आ रही, उसके अब्बू आदम को शर्म आ गई। हजरात, यही हदीस आगे बढ़ रही है, मुस्लिम में हदीस नंबर 284 है। अल्लाह अकबर, नूह अलैहिस्सलाम के पास जाएंगे और कहेंगे आपको सबसे पहले अल्लाह ने रसूल बना के भेजा। वो भी कहेंगे लस्तु हुनाकुम, ये मेरा काम नहीं है। फयज़कुरु खतीअतुल्लती असाब, वो अपनी गलती को याद करेंगे कि मैंने अपने रब से बेटे के बारे में बहस की थी। अल्लाह अकबर, फयस्तही रब्बहु मिन्हा, अपनी गलती की वजह से शर्म आ गए। नूह को शर्म आ जाए लेकिन तुझे या मुझे शर्म ना आए, तो मुकाम फिक्र है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम है, लोग इनके पास गए, इनका भी जवाब आया लस्तु हुनाकुम, ये मेरा मुकाम नहीं है। वयज़कुरु खतीअतहुल्लती असाब, उस गलती को याद करेंगे जो गलती हो गई थी। फयस्तही रब्बहु मिन्हा, वो भी शर्म आ गए। इब्राहिम को शर्म आ गई, लेकिन तुझे मुझे आज तक शर्म ना आई, तो क्यों ना आई? मूसा अलैहिस्सलाम के पास गए, उनका जवाब भी वही, वयज़कुरु खतीअ, उन्हें अपनी गलती याद आ गई। अल्लती असाब, जो उनसे हो गई थी। फयस्तही रब्बहु मिन्हा, वहां भी शर्में आ गई। लेकिन आज इंसान को, आपको, मुझे ये मुकाम मुयस्सर ना आया, अंबिया होकर के जिनके गुनाहों को अल्लाह ने साबिका गुनाह माफ किए हुए, मा तकद्दम लक, जो पहले गुजरे, व मा ताखर, जो अभी हुए नहीं है या इम्कान भी नहीं है। अल्लाह अकबर, ये सारी चीजें जान लेने के बाद मैं हजरत इंसान की तरफ और अपनी कैफियत की तरफ और कुरान की तरफ बढ़ रहा हूं। अल्लाह फरमाते हैं, शिकवा कर दिया मेरे रब ने, वमा कदरुल्लाह, ये इंसान के हकू रब की नाकदरी, बेशर्मी की इंतहा। अल्लाह बोल उठे, वमा कदरुल्लाह हक्का कद्र ही, लोगों ने मेरी कदर करने का हक अदा नहीं किया और बेहुरमती की ये कैफियत और बेशर्मी की। अल्लाह फरमाते हैं, वमा मनअ अन्नास
अन युमिनु इज़ जाअहुमुल हुदा, लोगों को हुआ क्या है, शर्म इतनी ही चली गई कि हमने हिदायत उतारी है, ये फिर भी ईमान नहीं लाए। और फरमाया वमा अरसलना मिन रसूलिन इल्ला लियुता बिइज़निल्लाह, हमने अंबिया भेजे कि उनकी पैरवी की जाए, लेकिन इन्होंने नहीं की। या अय्युहल इंसानु मा गर्रका बिरब्बिकल करीम, इंसान तेरी बेशर्मी ने तुझे हमारे खिलाफ उभार डाला। या अय्युहल्लज़ीना आमनु आमिनु, ऐ ईमान वालो शर्म को मद्देनजर रखो और हकीकी मानों में मोमिन बन जाओ। या अय्युहल्लज़ीना आमनु तकुल्लाह, शर्में कब आएंगी और अल्लाह का खौफ कब पैदा होगा, अहकाम को कब लिया जाएगा, नवाही को से कब रुका जाएगा। रमजान आया, रब ने आवाजें दी, या बागी अल खैर अकबिल, नेकी की उम्मीद रखने वाले, आज भी शर्म ना आई तो कब आएगी। व या बागी शर्र अक्सिर, और बुराई से रुकने वाले, रमजान में भी ना रुका तो तुम्हें शर्म कब आएगी। वमा यातीहिम मिन रसूलिन इल्ला कानू बिही यस्तहज़िऊन, हमारी तारीख को दुनिया ने देखा है, तारीख शाहिद और गवाह है कि जब भी इंसानों के पास कोई भी पैगंबर या रसूल आए, उन लोगों ने उनसे मजाक किया, इस्तेहजा किया। मुझे आज अभी रात आते हुए मैसेज आया रास्ते में, हमारे मुसलमानों के मुल्क के अंदर, गैर मुस्लिम ने तो किया था, लेकिन आज मुस्लिम मुल्क के अंदर एक मुस्लिम, क्या कहूं, कहां तक मुस्लिम मुस्लिम बोलूं, लेकिन अल्लाह अकबर, एक भालू के ऊपर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लिख के मुखातब किया गया। कल तक नेट के अंदर इंसान नहीं शर्माया, सूअर और खिंजीर की दुबर पे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के चेहरे का जो है वो अक्स बना करके वहां रखा गया। क्या क्या बोला जाए, इंसान कितना बेहया हो गया, अपने आप से मजाक तो कर रहा था, इसका स्टेज, इसका थिएटर ये तो बहुत जो है डेवलप हो गया था, लेकिन इसका ईमान बेशर्मी की उतनी नजर हो गया कि इसने अपने बानियान जो है मजाहिब के, उनकी भी तौहीन के हवाले से कभी सोचा ही नहीं। अल्लाह अकबर। इसके बाद मैं आगे बढ़ता हूं। लोगों, मुकाम शर्म है कि इंसान रब्बे कदीर को छोड़ के बंदा फकीर से मांगे। मुकाम शर्म है कि अला कुल्ल शैइन कदीर को छोड़ के इंसान अंतुमुल फुकरा के दर को खटखटाए। ये मुकाम शर्म है कि रब्बे मुख्तार को छोड़ के इंसान बे इख्तियार से मांगा जाए। मुकाम शर्म है कि रब्बुल आलमीन को छोड़ के मरबूबीन के दरों पे जाया जाए। मुकाम शर्म है कि खालिक के दो सरा को छोड़ करके मखलूक बे आसरा को ढूंढा जाए। मुकाम शर्म है कि रज़्ज़ाक को छोड़ के मरज़ूक से मांगा जाए। मुकाम शर्म है कि जब्बार को छोड़ के मजबूरों से मांगा जाए। मुकाम शर्म है कि रहमान दो जहां को छोड़ के बंदा मरहूम से मांगा जाए। मुकाम शर्म है मालिक यौमिद्दीन को छोड़ के जनाबे बहाउद्दीन से मांगा जाए। रब्बुल खैर को छोड़ के ख्वाजा अजमेर से मांगा जाए। या हय्यु या कय्यूम को छोड़ के मुर्दू से मांगा जाए और दरे बैतुल्ला को छोड़ के मिजारों दरबारों सरकारों का सफर किया जाए और दरे वाहिद को छोड़ के दर दर की भीख मांगी जाए। तो मुकाम शर्म है इंसान तेरा रब शर्माए तुझे शर्म ना आए क्यों। जरा गौर कीजिएगा, अंबिया के हवाले से बेशर्मी का तज़किरा मैंने सिर्फ नेट की एक झलकी रखी। अल्लाह अकबर, नजरें चुधिया जाती हैं और उस वक्त जो है कदम उनके नीचे से जमीन निकल जाती है कि हम जिंदा हैं तो कैसे हैं। काजी अयाज की अशफा में इस बात को आज भी देख के उस कौम को जीने का कोई हक नहीं कि जिनके नबी को गाली दे दी गई। लेकिन गाली नहीं, उससे भी बहुत कुछ आगे हो गया। हमें शर्म नहीं आई, इंसान के हाथ वही बनाने वाला वही करने वाला। अल्लाह अकबर। अल्लाह ने शिकवे किए कि अंबिया के साथ बेशर्मी के क्या नतीजे निकले। ये सूरतुल बकरा है। अल्लाह फरमाते हैं अंबिया आए, नबद फरीक, एक फरीक ने उनके अहकाम को फेंक दिया। अल्लाह ने अंबिया भेजे इताअत के लिए, लोगों ने नाफरमानियां कर डाली। ये सूरह आले इमरान है। अल्लाह ने सूरतुन निसा में कहा बेशर्मी का एक रिजल्ट ये भी निकला, वासावुर रसूल, उसकी नाफरमानी कर डाली, हालांकि फर्मा बरदारी करनी थी। एक रिजल्ट ये भी निकला बेशर्मी का नतीजा
کہ اللہ ने भेजा था कि उनको माना जाए, वमन युशाकिकिर रसूल, लेकिन कितने ही लोग थे जो उनके सामने अड़ियल बन गए। अल्लाह अकबर। अल्लाह फरमाते हैं बेशर्मी का एक और मजहर कि हमने भेजा उनकी तस्दीक की जाए, फरीकन कद्दबू, लेकिन एक ग्रोह जो है उनकी तकजीब पे आ गया। हमने भेजा था उनकी मुआवनत की जाए, साथ दिया जाए, वह फरीकन यक्तुलून, लोगों ने अंबिया को कत्ल तक कर डाला। इसी तरीके से हमने भेजा था कि उनकी वैल्यू को बुलंद किया जाए। अल्लाह सूरह मायदा में फरमाते हैं कालू हस्बुना मा वजदना अलैहि आबाना, जब भी अपनी वैल्यू को पेश किया लोगों ने उनको डी वैल्यू कर दिया। बेशर्मी की इंतहा देखिए, इंसान के हाथों रब अंबिया की तजलील होते हुए कुरान में पेश करते हैं। अंबिया ने कहा लोगों आओ राह हिदायत पर, जवाब आया सूरतुल आराफ है इन्ना लनराका फी दलालिम मुबीन, पैगंबर हम नहीं तुम गुमराही में हो। पैगंबरों ने कहा आओ अकल की बात सोचो, जन्नत की तरफ बढ़ो। लोगों ने कहा इन्ना लनराका फी सफाहा, आज भी दुनिया ये बोलती है। अल्लाह अकबर। अल्लाह ने कहा आओ पैगंबर के पीछे चलो। रब के कुरान में शिकवा बन गया सूरह अनफाल में, हाँ शाकुल्लाह व रसूला, इन लोगों ने पैगंबर को शाख दिए, झटके दिए, हट गए उनके राह से। वह हम्मू बिइखराजिर रसूल, एक और बेशर्मी कर डाली, इन्होंने पैगंबर को अपने घर से निकाला। कल मुशरिक ने आका को मक्के से निकाला, आज मोमिन ने आका को अपनी सूरत से, सीरत से, अमल से, किरदार से, गुफ्तार से, घर बार से निकाल डाला। हजरात फर्क देखिएगा क्या है। अल्लाह अकबर। कल जो है काफिर ने कुफर करके उनकी गुस्ताखी की, आज इंसान ने सब कुछ जानते हुए मानते हुए भी इनकार कर दिया। और फिर पैगंबर को कल उन्होंने पत्थर मार के तकलीफें दी। हमने पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम पे झूठ बोल के उनको तकलीफें दी। कल उन्होंने आका की मुखालफतें करके सामने डट के उनको तकलीफ दी। आज हमने बेशर्मी की इंतहा करके आका के फरमान, कौल, करार, गुफ्तार, सूरत और सीरत का मुकाबला डट करके किया। कल उन लोगों ने आका के सामने मजाक किए, आज हमने उनकी अदम मौजूदगी और उनके पीछे जो है अल्लाह की आयात के साथ और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिवायात को इस्तेहजा का निशाना बनाया। कल उन्होंने अल्लाह के रसूल के साथ ओहद और इस तरह के गज़वे बपा किए। आज हमने एक एक गली के अंदर अल्लाह और उसके रसूल के खिलाफ बेशर्मी का मुजाहरा करते हुए जो दिल में आया वो कर रहे हैं। हजरात देखते जाइए, यतखल्लफु अन रसूलिल्लाह, अल्लाह ने कहा वो पैगंबर से पीछे रह गए। आज जरा सूरत तौबा में अल्लाह के इस शिकवे को देखिए, हजरत इंसान की आज बेशर्मी को देखिए। पैगंबर कहां के कहां, और ये इंसान का अमल, कौल, करैक्टर, किरदार, जिंदगी, सूरत और सीरत, उसके मुआमलात, खुशी गमी, दुख दर्द, ये कितना पीछे रह गया। वमा यातीहिम मिन रसूलिन इल्ला कानू बिही यस्तहज़िऊन, वही हुआ जो अल्लाह ने कहा बेशर्मी और बेहयाई पे उतर करके इन्होंने मजाक किए वो हम कर रहे हैं। अल्लाह और उसके रसूल के साथ क्या क्या मजाक नहीं हो रहा, जुबान हिम्मत नहीं देती कि मैं उसको बयान करूं। आगे बढ़ता हूं हजरात। आज हम इंशाअल्लाहुल अजीज इस वक्त कुछ उस चीज की कि जिन लोगों ने शर्में की उनको क्या मिला, रब से शर्मा गए, और जो लोग रब से नहीं शर्माए उन्हें क्या मिला। अल जज़ाउ मिन जिन्सिल अमल, जैसी करनी वैसे भरनी। नतीजा जरा थोड़ी सी बात को समझने के लिए कि अल्लाह रमजान के मुबारक महीने में हमारे अंदर थोड़ी सी कैफ पैदा कर दे, शऊर पैदा कर दे, सोए हुए जमीर उठ जाएं। अल्लाह अकबर। मैं इशारा कर रहा हूं, पहली मिसाल देना चाहता हूं। हमारे अंदर बेशर्मी ने रिया पैदा कर रखी। कोई इंसान अगर आज इससे बचा है तो मैं उसको वक़्त का वली समझता हूं और उसके लिए दुआ करता हूं अल्लाह उसको और आसमान का सितारा बना दे, और जिनमें कमी है अल्लाह उनकी कमियां दूर कर दे। मेरे भाइयों, रमजान में इससे बढ़ के मिसाल शायद समझना आए। वो सखी, वो कारी कुरान और वो मुजाहिद, क्या कसूर था उनका। कभी सोचो तो सही, इखलास का हुक्म मिला लेकिन वहां पे तर्क करने को जो है हमने न शर्माए न घबराए, और जवाब क्या आया, कज़ब्त, तूने झूठ बोला, तूने जिहाद किया था किसी और मकसद के लिए, कुरान पढ़ा था, पढ़ाया था किसी और मकसद के लिए, चंदे दिए थे लेकिन किसी और मकसद के लिए। फकद कील, लोगों ने जजा दे दी, अल जज़ाउ मिन जिन्सिल अमल, उम्मीद ये थी जन्नत मिलेगी, अल्लाह ने जहन्नम का इफ्तिताह कर दिया। बेशर्मी का ये अंजाम भी देखिएगा। अल्लाह अकबर। बेशर्मी एक और भी लाती है कि पैगंबर पे बंदा झूठ बोले। मैं इस वक्त हैरान हूं, एक ईसाई का दरबार है, दरबार
दरबार हिरकल है और उसमें अबू सुफियान है, ये कुफर का सरदार है। लोगों, तड़प के सुनने वाली बात माअज़ल्लाह, कहते हैं ये बुखारी की हदीस है, काला अबू सुफियाना वल्लाही लौलल हयाउ, अगर हया और शर्म माने ना होती, यौमाइज़िन, जिस दिन मैं दरबारे हिरकल में मौजूद था, मिन अय्यासुरा सहाबी अन्नी अल कज़ब, कज़ब के मेरे लोग मुझे कहेंगे कि ये झूठा है, झूठ बोला है इसने, और मुझे शर्म आ गई। उसने जो भी सवाल पूछे मैंने आका के बारे में सच बोला, वगरना मैं उस वक्त झूठ बोल देता, मैं सच बात ना करता। जो उसने पूछा था तुम्हारा नबी कैसा है, मैं झूठ बोल देता। अबू सुफियान को उस वक्त कुफर का इमाम होते हुए शर्म आ गई, मगर आज के मुसलमान के आलिम को आलिम होते हुए भी शर्म नहीं आई। वो अल्लाह के रसूल पे झूठ बांध के ज़ईफ रिवायात, मौजू और मन घड़त पेश कर रहा होता है, और डंके की चोट बबांगे दोहल आका के मिंबर की विरासत को संभाल के वारिस होने का मुजाहरा मगर आप पे झूठ बोल के कर रहा होता है। अल्लाह अकबर, जजा क्या होगी? क़यामत के दिन हौज़े कौसर का पानी पीने के लिए जब बढ़ेगा, आपने मंजर सुना हुआ है, दीवार दरमियान में हाइल होगी और आका कहेंगे उम्मती उम्मती, अल्लाह मेरी उम्मत। जवाब आएगा सुहकन, नहीं, ये इसके बाद आपके साथ क्या करते रहे आपको इल्म नहीं। आका कहेंगे सुहकन सुहका, हाँ इनको फिर दूर ही कर दीजिए। आका पे झूठ बोल के जहन्नम ठिकाना हो, इंसान को फिर भी शर्म न आए। बेशर्मी का एक और नतीजा कि लोगों, आका घबरा रहे, अल्लाह घबरा रहे, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा, आप उनको कह रहे हैं मुहाजिरीन की जमात, 5 चीजें मैं घबरा रहा हूं कि आपको वो पाएं। हम सुन इदब तुली तुम बेहिन्ना, तुम्हारा क्या बनेगा? वो 5 गुनाह, 5 पाप, 5 बीमारियां, 5 हरकात, 5 अयूब, 5 बगावतें, 5 बेशर्मियां, 5 बेहयाइयां, 5 बेबाकियां, क्या नतीजा निकलेगा? उनमें से पहली बेहयाई का एक नतीजा जो मजमूई तौर पे आज हम तीसरे नंबर पर ला रहे हैं, जिना है। इससे बढ़ के भी बेशर्मी होगी। फरमाया लम तुज़हरिल फाहिशतु फी कौमिन कत, जो कौम इतनी बेहया हो जाए कि उनमें फहाशी ज़िना आम हो जाए, हत्ता युलिनु बिहा, हत्ता कि ये काम एलानिया होने लगे, इल्ला फशा फीहिमुत ताऊन, जब बंदा नहीं शर्माता अल्लाह उससे क्या करता है? उसके पेटों को पकड़ लेता है, उस कौम के पेट सही नहीं होने देता। वल औजाउल्लती लम तकुन मज़त फी अस्लाफिहिमुल्लज़ीना मज़ऊ, लोगों, अस्पताल बढ़ाना इलाज नहीं है, 1122 बढ़ा देना इलाज नहीं है, अल्लाह से शर्म करके वापिस लौट आना इलाज है। वगरना वो बीमारियां जिनके नाम हमारे आबाओ अजदाद ने नहीं सुने थे, आज उनका इलाज हमारे अस्पतालों में मुमकिन नहीं है। नतीजा सिर्फ बेशर्मी है। काश हम लौट आए। ये सिलसिला सहीहा के अंदर हदीस मौजूद, अल्लामा अलबानी ने इसको सही कहा है। हजरात, इसी तरीके से बेशर्मी का एक और नतीजा कि इंसान मीजान को बदल डाले, शर्माए नहीं। वलम यनकुसुल मिक्याल वल मीजान, आज मेरे और आपके बाजारों में कंडे खराब हैं, मीजान सही नहीं, हमारे मीटर गजों में बदले, गज फिर टेढ़े हो गए, हमारी गडमियां पहले छोटी, मजीद उनमें चिब डिंगे टेढ़े कर लिए हमने, हर चीज को हमने बदला, हमें शर्म नहीं आई। मेरे रब ने अल जज़ाउ मिन जिन्सिल अमल, सजा दी पहले नंबर पे बिस्सनीन। सब कुछ होते हुए भी मेरे मुल्क में बिजली नहीं, सब कुछ होते हुए गैस नहीं, अपनी चीजें होते हुए खुद को मुयस्सर नहीं। इससे बढ़ के क्या होगा? वशिद्दतिल मऊना, अल्लाह उस कौम के बजट को बर्बाद कर देते हैं। आज मेरा और आपका बजट खराब, वजौरिस सुल्तानी अलैहिम, और उससे बढ़ के ये है कि हुक्मरानों की सख्तियां अपनी जगह पे। कल शाम के वक्त में खजूर खरीदने रेड़ी पे खड़ा हुआ, अल्लाह अकबर, चिश्तियां का आदमी बेच रहा। मैंने पूछा ये पैकेट में क्या है? कहता है कि जनाब अब्बा हुजूर जरदारी ने बेची हैं, ये उनके लिए हैं जो फ्लड वालों के लिए आई थी। वजौरिस सुल्तानी अलैहिम, मैंने पैकेट उठाया तो लिखा था गैर मुखस्ससिन लिल बै, कि ये बेचने के लिए नहीं, लेकिन वो 200 रुपए किलो बिक रही, हमें शर्म ना आई। अल्लाह अकबर,
बात आगे बढ़ रही है। हमारे पानी में मिलावट, मशरूबात में मिलावट, माकूलात में डंडी, हमारे दूध में डंडी, दवा और मेडिसिन में डंडी, नाप तोल में हमने डंडी मारी, शर्माए नहीं। हमारे लीटर और मीटर में डंडी, हम शर्माए नहीं। मीटर की जगह जो कुछ आया वो हमारे सामने, हमारे बाटू में हेर फेर आ गया। वल जज़ाउ मिन जिनसिल अमल इज़ा ज़हबल हयाउ फस्ना मा तशाउ। जब हया चली जाए तो जो मर्जी कर, तेरा हाथ कोई नहीं रोकेगा, लेकिन अल्लाह तेरे बजट को खराब करेगा, फिर रोएगा, दुआएं करेगा, शायद वो रमजान में भी कबूल ना हो। जरूरी है कि हम पहले शर्मा जाएं, शर्मा के लौट आएं। अल्लाह अकबर। बेशर्मी का एक और नतीजा, लोग 100 रुपए अल्लाह उनको देगा, जाओ अपने घर का किचन चलाओ, अमीर को 100 मिलेगा। और कहा जाएगा अढ़ाई जाते जाते एक गरीब को दे जाना ताकि वो भी शाम को अफ्तारी कर ले। लेकिन अमीर भी इतना बेशरम हो जाए कि 97.5 अपने भी ले जाए, उसके 2.5 भी दबा जाए, उसका किचन फिर भी ना चले, और गरीब के हाथ पे एक आना भी ना रखे और कहे कि कोई बात नहीं, मरता है तो मरे। किसने कहा था कि ये गरीब बने? जब बेशर्मी इस कदर हो जाए, आका ने फरमाया वलम यमनऊ ज़कात अमवालिहिम, ये अपने मालों की ज़कात रोकेंगे। इल्ला मुनिउल कतरा मिनस समा, अल्लाह आसमान से रहमत की बारिश रोके। बारिशें होंगी, ये नहीं कि नहीं होंगी, होंगी, रहमत की नहीं होगी, जहमत बन जाया करेगी। और पहले तो अल्लाह उतारेंगे नहीं, खुशक साली से मारेंगे, और अगर कुछ बच गए जानवरों का हिस्सा उतारेंगे, और उसको भी इस तरह उतारेंगे कि इनको डबो डबो के मारेंगे। ये अभी पहले नहीं संभले होंगे, ऊपर से नई कैफियत और अजाब आ जाएगा। अल्लाह अकबर। जब बंदा न शर्माए, अल जज़ाउ मिन जिनसिल अमल, नतीजा वैसा होता है। इसी तरह आका ने फरमाया टूटते वादे, इंसान शर्माए नहीं। एक मर्द औरत से वादा करके तोड़ दे, सारी जिंदगी ताने लेने पड़े। एक दोस्त से वादा करके तोड़ दे, सारी जिंदगी लान तान हो। अल्लाह अकबर। एक मिसाक जमहूरियत का कहीं खिलाफ हो जाए, सारी जिंदगी मीडिया बोले, अल्लाह और उसके रसूल से किए वादे इंसान तोड़ दे, बेशर्मी के ऊपर डट जाए, फिर अल्लाह क्या करते हैं? वलम यनकुज़ू अहदल्लाहि व अहद रसूलिही, अल्लाह से किए वादे, ला इलाहा इल्लल्लाह, शर्माया नहीं, तोड़ डाला। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, शर्माया नहीं, तोड़ डाला। इल्ला सल्लल्लाहु अलैहिम अदुव्वम मिन गैरिहिम, अल्लाह अपने दुश्मनों से हटा के बाहर से बैरूनी दुश्मन लाके मुसल्लत करता है। फअखज़ू बअज़ मा फी ऐदीहिम, वो उनके हाथों में से वो भी ले जाते हैं जो थोड़ा बहुत होता है। इज़ा ज़हबल हयाउ फस्ना मा तशाउ, जब शर्म न रहे तो जो दिल में आए कर। और याद रहे, अल्लाह फिर क्यों ना कह दे, जब तुझको तमन्ना मेरी थी, मुझको भी तमन्ना तेरी थी। जब तुझको तमन्ना गैर की हुई, जा तेरी तमन्ना कौन करे? जब तुझे शर्म नहीं आ रही, मैं तेरे साथ क्या सलूक करूं? अल्लाह अकबर। कायनात मुसख्खर की हमारे लिए, लेकिन आज हमारे लिए एक हमारे पसीने को खुशक करने वाली नेमत हमसे जो है मुसख्खर ना हो सकी। अल्लाह ताला के महबूब फरमाते हैं, शर्म उड़ी। वमा लम तहकुम अइम्मतुहुम बिकिताबिल्लाह, अल्लाह ने इमाम बनाया, आगे किया, बड़ा बनाया, अदालतों में बिठाया, उनको जो है जज बनाया, कुरान किताब उनके पास दी, उन्होंने इसको इमारतों पे सजाया और तराजू बना करके ऊपर कुरान की आयतें लिखी। लेकिन जब अमल की बारी आई और काम दिखाने, कानून को हरकत में लाने की बारी आई, दुनिया के उसूल तो कार फरमा रहे, अल्लाह और उसके रसूल का कानून पेश न कर सके। नतीजा क्या है? इल्ला जअलल्लाहु बअसहुम बैनहुम, जब उनको शर्म नहीं आई तो अल्लाह ने उनको अपने घर में एक दूसरे के भाई के गिरेबान हाथ में देके तू तुकार से मरवाया। एक गली में हम सायों से एक दूसरे से लड़ाया, एक बाजार में, एक शहर में, एक सूबे में और एक मुल्क के अंदर एक कलमा पढ़ने वालों को आपस में। हजरात, कराची क्या हो रहा है, बलूचिस्तान क्या हो रहा है, पंजाब में क्या हो रहा है, पख्तून खैबर खा और कुर्बो जवार में क्या कुछ नहीं हो रहा। हाँ, नतीजा है, अगर हम चाहते हैं कि अल्लाह हमें इससे बचा ले, मरहम चाहते हैं, इलाज चाहते हैं, तो शर्म से बड़ा ही कोई मरहम नहीं। हम लौटे। अल्लाह अकबर। इसी तरह शर्म एक और तरफ बढ़ गई। करप्शन को देखें, गुलूल को, धोखा फराड को देखें, जरा घबरा के, थोड़ा सा शर्मा के। अबू मसूद अल अंसारी कहते हैं, मुझे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साई बना करके भेजा कि जाओ और जाकर के लोगों से जो ज़कात का माल कलेक्ट करो, और मुझे साथ में यह कहा, अबू मसूद देख लेना
کہیں ایسے نہ ہو کہ کل قیامت کے دن تو آئے اور میں دیکھوں کہ تیرے اوپر کہیں اونٹ صدقے کا چڑھا ہوا، کہیں تیری کمر کے اوپر جو ہے اور وہ بلبلا رہا ہے، کہیں گائے ہے اور وہ جو ہے بول رہی ہے، اور کہیں بھیڑ یا بکری ہے اور وہ ممنا رہی ہے۔ یہ ساری چیزیں ایک بھیڑ ایک بکری یا ایک اونٹ کی کرپشن جو ہے قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں اوپر لاد دی جائے گی۔ وقت کا صحابی بھی کیوں نہیں، آج کھلی اجازت۔ وجہ کیا ہے؟ ہاں رب تو شرمایا لیکن انسان نہ شرمایا، نہ چھوٹا شرمایا نہ بڑا شرمایا۔ نتیجہ وہ نکلا بھائیو، شرم نے ایک اور جب ہم نے نہ کی نتیجہ نکلا شراب نوشی کی طرف رب نے منع کیا، ہم نہ شرمائے نہ گھبرائے، میں شرابی کی ہم نے رٹ لگائی، قوال گائے، اور سید الکونین فرمائے اتانی جبریل فقال یا محمد، میرے پاس جبریل آئے اور کہنے لگے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ عز وجل لعنا، اللہ نے لعنتیں فرمائی ہیں شراب کے اوپر، شراب نچوڑنے والے کے اوپر، جس کے لیے نچوڑی جائے اس کے اوپر، اور پینے والے پر، اور اس کو پلانے والے پر، اس کو اٹھا کے لانے والے پر، اور جس کی طرف لوڈ کر کے لے جائی جا رہی ہے اس کے اوپر، بیچنے والے پر، خریدنے والے پر، اور اس کی قیمت کو گھر بیٹھ کے کھانے والے پر، ان سب پہ لعنتیں فرمائیں۔ لیکن ہمیں شرم نہ آئی۔ میرے ملک عزیز میں ذرا لہرا کے جام کو ہاتھ میں تھما کے پلا دے اور پلا دے، آؤ سجدہ کریں ایک عالم مدہوشی میں۔ کون کہتا ہے کہ ساغر کو خدا یاد نہیں؟ رب کہہ رہا ہے لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، لیکن بندے کو شرم نہیں آ رہی۔ اللہ شرما رہے تو شرابی ہے تو نہ، لیکن اسے شرم نہیں آ رہی، کہتا ہے آؤ ایک سجدہ کریں عالم مدہوشی میں۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح بے شرمی ہمارے اندر بے شرمی آئی، شرم اٹھی، حیا اٹھ گئی، ربا آ گیا، سود آ گیا۔ ہم نے دنیا میں نے ایسا بد نصیب انسان نہیں دیکھا جو جنم دینے والی ماں سے منہ کالا کرتا ہو۔ شرمائے گا، کانوں کو ہاتھ لگائے گا، استغفر اللہ کہے گا، لیکن اے سی میں بیٹھ کے، دکان میں بیٹھ کے، اپنے آفس میں بیٹھ کے، گھر میں بیٹھ کے، تھڑے پہ بیٹھ کے اللہ اکبر کیا کرے گا؟ دن میں کتنی بار اپنی ماں سے زنا کرتا ہوا منہ کالا کرتا اٹھے گا، شرم نہیں آئے گی۔ آقا کا فرمان صحیح مسند احمد میں، طبرانی میں، علامہ البانی نے صحیح کہا، 1 درہم کے برابر زنا جو ہے یہ ربا، سود کھانے والا آدمی جو جانتا ہے کہ یہ سودی کاروبار ہے، اشد عند اللہ من 36 زنیہ، 36 مرتبہ زنا کر کے آنے والا انسان اتنا برا نہیں جتنا 1 درہم جو ہے وہ سود کھا کے اٹھنے والا آدمی اللہ کی نظر میں برا ہے۔ اللہ اکبر۔ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مستدرک حاکم میں علامہ البانی نے صحیح کہا ہے کہ ربا جو ہے 73 بابا، 73 دروازے ہیں سود کے، ایک کھولے دوسرا بند تیسرا کھلے، کھلتے اتنے دروازے، اور سب سے چھوٹا اور آسان ترین دروازہ یہ ہے کہ انسان اپنی ماں سے منہ کالا کرے۔ اللہ اکبر۔ انسان پھر بھی نہیں شرما رہا، لگا رہا ہے لگاتار۔ ابھی تو کل رات پالیسی آئی ہے میرے ملک کے سود کی، اللہ اکبر۔ اس میں ہم نے جو ہے 1% کے سے جو ہے ½ اس میں جو سلسلہ رکھا، ہم نے پھر بھی شرم نہ آئی۔ تجھے شرم نہ آئے، والدین سے بے رخی کا ایک نتیجہ، اس کو بھی مد نظر رکھیے۔ ابن ابی دنیا ابھی قضا جو ہے یہ رجل من اہل البصرہ، لوگوں شرم جب اڑ جاتی ہے پھر ماں باپ کی قدر نہیں رہتی۔ یہ ساتھی کہتے ہیں یہ واقعہ میں نے اس لیے رکھا شاید اللہ ہمیں بھی شرم دے دے۔ دیکھا کہ ایک قبرستان کے پاس سے گزرے، وہاں سے آوازیں آ رہی ہیں کہ گدھا جیسے بولتا ہے۔ جب بھی کوئی گزرے تو گدھے کے بولنے کی آوازیں آئیں۔ ان لوگوں نے پوچھا یار یہ معاملہ کیا ہے؟ تو کہنے لگے ھذا رجل عندنا فكانت امه تكلمه بالشيء، اس کی ماں جب اس کو بلاتی تھی نا یہ نوجوان، تو ماں کو سامنے سے کہتا تھا گدھے کی طرح ہینگ نہیں مار۔ آپ نے کیا ہینگ نہیں لگائی ہوئی ہے؟ ان حقی نہی کی ہینگ اور ہینگ۔ اللہ اکبر۔ فکانت امہ تقول جعلک اللہ حمارا، ماں کا دل دکھا، ایک دن بول اٹھی اللہ تجھے گدھا ہی کیوں نہیں بنا دیتا؟ فلما مات نسمع ھذا النہیق عند قبرہ کل لیلہ، ہر رات ہم اس کی قبر کے ہاں گدھوں کے بولنے کی آواز سنتے ہیں۔ بھائیوں، نوجوانوں، مائیں، والدین، ہماری زبانیں، ہماری بے باکیاں، ہماری بے شرمیاں، بے حیائیاں انتہا کر گئی ہے۔ تو چھوٹی بات ہے ہم اس سے بھی بہت بڑا بول جاتے ہیں۔
अल्लाह हमें शर्म व हया दे, हमें लौटा दे अगर कोई कमी बेशी है। मैं अपने समेत वसीयत करता हूँ, नसीहत करता हूँ, आज जाके पहले नंबर पे माँ के कदमों में जरा झुक के बात कर लेना। अल्लाह ताला हमें शर्म दे दे। मखलूक के मामले में शर्म हो गई तो आगे भी इंशाअल्लाह अल्लाह शर्म दे देगा। मैं बीवियां, बेटियां, बहनें, माएँ भी हमारे शरीफ सख्त जो है शरीफ के सफर होती हैं, उनको भी जरा तवज्जो दिलाना चाहता हूँ। हमारी शर्में बहुत दूर चली गई, बेहयाइयां बहुत उरूज पर चली गई, मीडिया जीत गया, हम हार गए। अल्लाह अकबर, हमारे घर की औरतें हम ही से जीत गई। लेकिन मैं मिसाल देना चाहूंगा, ये आज जिसकी बात कर रहा हूं वो एक बादशाह की बेटी है, वो कई बादशाहों की बहन है, एक बादशाह की बीवी है, बाप भी बादशाह, दाएं बाएं भाई भी बादशाह, उसका शौहर और सर का ताज भी बादशाह। अल्लाह अकबर, जब शौहर ने देखा पहले दिन जो है हुकूमत के अंदर आए, बीवी के हाथ में सोने के कंगन, ये वो शहजादा है जिसे अरब का शहजादा कहा जाए, उम्वी शहजादा, और इसकी अहलिया शहजादी है, लेकिन बीवी के हाथ में कंगन देखे तो बुलाया, कहा मेरी अहलिया, क्या मेरी रियाया की हर औरत के हाथ में कंगन है, सोना है? कहा नहीं। तो कहा फिर मुझे हया आती है, अगर किसी ने पूछ लिया तो क्या जवाब दूंगा। बीवी ने उतारे बैतुल माल में जमा करवा दिए। शौहर उमर इब्न अब्दुल अजीज अलैहिर्रहमा वफात पा गए और बैतुल माल का खजानची वो अपने कंगन उठा करके ला करके, इन फातिमा इनका नाम है, इनके पास लेके आया। कहने लगा ये अपनी जो है अमानत ले लीजिए। कहने लगी तूने मुझे समझा क्या है? कहा जी आपकी अमानत थी, आपका जाती माल था, आपके शौहर ने जमा करवाए, अब वो नहीं है। तो कहने लगी जिस तरह मैं उनकी जिंदगी में शर्माती थी और वो जमीन के ऊपर थे, आज वो मेरी नजरों के सामने नहीं, वो जिंदा नहीं, वो कब्र में हैं, वो मिट्टी के नीचे हैं, मैं उससे कहीं ज्यादा उनसे शर्माती हूं। मुझे उनके मरे हुए उस जिस्म की भी लाज है। अल्लाह अकबर, आज बीवी होके शौहर के सामने न शर्माए, बेटी होके बाप के सामने हया न करे। और लोगों क्या क्या रिश्ते, किन किन रिश्तों को बोलूं, लेकिन अगर हया आ जाए तो मरने के बाद भी उसका वकार और मुकाम और इज्जत के आज हम उसका तज़किरा कर रहे हैं। और अगर शर्म ना आए तो फिर रोजाना हमारे तज़किरे अल्लाह जिस तरीके से करवाते हैं, अल्लाह हमें खबर पढ़ने की तौफीक देता है, कभी खबर बनने की तौफीक न दे। खबर पढ़ना आसान होता है लोगों, खबर बनना बहुत मुश्किल होता है। अल्लाह मेरे घर की कभी खबर न बनाए। अल्लाह अकबर, बात आगे बढ़ाते हैं और इख्तिताम की तरफ निकलते हैं। बात करते चलें कि वफी अनफुसिकुम अफला तुबसिरून, हमारे जिस्म की बेशर्मियां बढ़ गई। याद रखिए मेरा पैगाम इस हाल के थ्रू से अल्हम्दुलिल्लाह तज़किये के लिए, तरबियत के लिए, तालीम के लिए, कि लोगों जरा गौर करना। आज के पहले प्रोग्राम का ऐलान ये है कि जिस्म तो तुझे अल्लाह दे, मांगत बने गैरुल्लाह का, तुझे शर्म ना आए। सवाल कर अपने आप से, जान अल्लाह दे, ऐलान किसी और का करे, शर्म ना आए। अंग अंग से नवाजे अल्लाह, मलंग बने किसी और का, शर्म ना आए। हाँ रंग दे तुझको अल्लाह, संग लगे किसी और के, तुझे शर्म ना आए। दिल दे अल्लाह, दिल लगी करे किसी और से, शर्म ना आए। आंख दे अल्लाह, नजरे जमाए किसी और पे, शर्म ना आए। कान दे अल्लाह, ध्यान धरे किसी और पे, शर्म ना आए। दिमाग दे अल्लाह, सोचे किसी और को, शर्म ना आए। नाक दे अल्लाह, रगड़े किसी और के दर पे जाके, शर्म ना आए। जबीं दे अल्लाह, जबी साई करे कहीं पर और, शर्म ना आए। सर दे अल्लाह, किसी और के दर पे झुक जाए, शर्म ना आए। जमीन दे अल्लाह, और फिर सजादा नशीन बने किसी और का, शर्म ना आए। आसमान दे अल्लाह, आशियाना व आस्ताना किसी और का, शर्म ना आए। जुबान दे अल्लाह, राग अलापे किसी और के, मांगे किसी और से, शर्म ना आए। क्यों नहीं आए, कब आएगी? जरा गौर कर। सीना दे अल्लाह, और कीना भी उसी के खिलाफ, कुव्वत गोयाई दे अल्लाह, और ये भी उसी की किबरियाई के खिलाफ, कुव्वत गुफ्तार से नवाजे अल्लाह, प्रचार करे किसी और का। गर्दन दे तुझको अल्लाह, घोंगे मन के डाले किसी और के, हाथ दे अल्लाह, फैलाए किसी और के सामने, उंगलियां दे अल्लाह, तू गवाही दे किसी और की, लकीरें बनाए अल्लाह, और तू लकीर का फकीर बने किसी और का, और दिखाए आमलों को, बावियों को और नजूमियों को। हाँ कदम दे तुझको अल्लाह, कारवां लेकर के चले, कदम दे रब्बुल जलाल, और कारवां चले झूले लाल। सर के बाल दे अल्लाह, और हाल चढ़े तुझे शाह जमाल का, तो फिर मुकाम शर्म है। हाँ वजूद से बढ़ के आगे मैं जरा गुफ्तार और किरदार की बात भी कर लूं। रब और रसूल के साथ गुफ्तार और किरदार में हमारी बेशर्मी का तारुज़ देखिए।
गुफ्तार होती है बैतुल्ला बैतुल्ला, किरदार होता है कोट मिठन गुफ्तार होती है अल्लाह अल्लाह, किरदार है जाहिर दे विच पीर फरीदन बातन दे विच अल्लाह, गुफ्तार है अल्लाहु अल्लाहु, किरदार है हक बाहु। क्या बेशर्मी है कि गुफ्तार अन्नबी सल्लु अलैह और किरदार नमाज रोजा हज ज़कात दीवारी मगरूल है। हाँ, गुफ्तार में सल्लु अलल हबीब और किरदार में अख्ज़े अकवाल और तर्के हदीस। कलमे की जरा बेशर्मी को नोट कीजिए। बंदे ने कलमा पढ़ा, बेशर्मी पे उतर आया। कलमा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का, बलागा शाह वलीउल्लाह का, कलमा नबी का, तरीका उम्मती का, कलमा पैगंबर का, अंदाजे नमाज उम्मती का, कलमा रसूल का, और जो है उसूल उम्मती का, कलमा खातमे नबूवत का, मोहर उम्मती की, कलमा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, अकीदा उम्मती का, दरूद रसूलुल्लाह का और विर्द रसूलुल्लाह का, तकलीद उम्मती की, पीर और मुर्शिद मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, पैरवी के लिए एक उम्मती। हाँ, नाते रसूलुल्लाह की, बातें उम्मती की, कलमा आका का, शेवा बिदआत का, कलमा सैयदुल मुरसलीन का, रसूम और रिवाज अपनी इलाके की, साहिब शरीयत रसूलुल्लाह, पीर तरीकत जो है रहबर शरीयत कोई और है। तो बेशर्मी को जरा इंसान नोट करे। अल्लाह अकबर। इस वक्त ताल्लुक की बेशर्मी देखिए। गुफ्तार सैयदी मुर्शदी, किरदार मुर्शद जो है थामा कोई और, गुफ्तार में या नबी, किरदार में बाबा नूर शाह वली, गुफ्तार सल्ले अला, किरदार फिक्र रजा, गुफ्तार हबीबना शफीना, किरदार मोहब्बतें किसी और के नाम, गुफ्तार अल मदीना चल मदीना, किरदार अल कूफा चल कूफा, गुफ्तार मदनी चैनल और किरदार अल बरेली चल बरेली, गुफ्तार नूर मिन नूरिल्लाह, किरदार महफिल मिलाद है और गुफ्तार अन्नबी, किरदार जो है अल्लाह अकबर बवक्ते नमाज और जमात, मस्जिद नबवी में अल लैट्रीन चल लैट्रीन। ये गुफ्तार गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है। किरदार नबी की सुन्नत पर अमल करते हुए मौत आती है। गुफ्तार अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, किरदार सही सुन्नतों को दूर से सलाम। गुफ्तार खुशबू मदीना, किरदार बू और बुग़्ज़ मदीना। अल्लाह अकबर। गुफ्तार में सदके या रसूल अल्लाह, किरदार में तेरी की में मन्ना मेरे सामने मेरे वड्डे या रसूल अल्लाह। और गुफ्तार में शाह मदीना, किरदार में फैज़ गंजीना। गुफ्तार या मक्की या मदनी, किरदार न पहले मन्नी न अजमनी। हाँ, गुफ्तार हाजा मिन फजले रब्बी, किरदार वखा के सजी मारी खबी। गुफ्तार सुन्नी, किरदार मुन्नी। रहमान बंदे की बख्शिश के बहाने ढूंढे, लेकिन इंसान करे तो क्या करे। अल्लाह अकबर। इंसान न घबराया न शर्माया। अल्लाह ने जहन्नम के दरवाजे बंद किए, इंसान को शर्म ना आई। अल्लाह ने शैतान बंद कर डाले, इंसान के लिए इसे शर्म ना आई। अल्लाह ने जन्नत के दर खोले, रहमत के दर खोले, आसमान के दर खोले, रमजान का महीना बुलाया और लैलतुल कदर को पेश किया, कुरान को उतारा, माह सियाम माह क़ियाम, और ये सब कुछ लेकर के आए। लेकिन इंसान को शर्म ना आई कि इसमें अपने गुनाह बख्श वाले आका ने कहा, बाउदा बदनसीब है वो इंसान के जिसको रमजान में भी शर्म ना आई। अल्लाह अकबर। रब ने लैलतुल कदर अता की, कदर मंजिलत की रात, और उसका इस्तिफ़सार करके अफजलियत 1000 माह से देके, नज़ूल मलाइका का समा बांध के, रूहुल अमीन को उतार करके, और बेइज़्न रब्बिहिम के परवाने देके, मिन कुल्ले अम्र के मामलात के खजाने खोल के, सलामुन हिया का अमन व ईमान देके, हत्ता मतलल फजर का फरमान देकर, लेकिन इंसान को फिर भी शर्म ना आई। तो फिर बात कर देते हैं कि जरा शर्म कर जवाब दे। वो बुलाए तू ना आए, अल्लाह आवाजें दे मैं तू कान न धरे, अल्लाह बुलाएं सदाएं बुलंद करें हम परवाह न करें। अल्लाह या अय्युहन्नास कहे तुझे मुझे एहसास ना हो, वह या अय्युहल इंसान बोले तू एहसान न जाने, वो या इबादी कह के बुलाए तू गफलत की वादी से न निकले, वो या अय्युहल्लज़ीना आमनू कहे तू मस्तजाम सुबू रहे, वो आसमान अव्वल पे आ जाए तू बिस्तर से न उठ पाए, वो सदा जागता रहे तू आंख ना खोल पाए, वो सदा जो है जमीरों को झंझोड़ता रहे, इंसान तू करवट न बदल पाए। वो हल मिन साइल बोले तू कायल ना हो, वो हल मिन ताइब बोले तू गायब रहे, वो हल मिन मुस्तगफिर कहे तू फिर भी जो है बाहर सय्यात में मुस्तगरक रहे। सोचेगा तो कब सोचेगा। दावत रुजू है इंसान, जरा लौटा पैगाम इनाबत की तरफ, शर्म है लौटा अल्लाह के रुजू की तरफ, और शर्म कर लौटा रब की मुराजात की तरफ। सदा लगाई अल्लाह ने पलटने का ऐलान दिया है, और फिर पलटने का अंदाज तुझे ये दिया, कह दे अल्लाहुम्मा इन्नका अफुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्नी। तू शर्म करके लौट, तेरे हाथ फैलेंगे, रब आसमान पे शर्मा जाएगा तेरे खाली हाथों को, कभी खाली नहीं मोड़ेगा, भर के देगा। इंसान जब भी शर्माया
अल्लाह उससे आगे बढ़ करके आए। हमारे सारे मैदान हमारे जहान जो है इस कैफियत के आए अपने रब के सामने एक बार जरा पलट के देखें, लौट के देखें, शर्मा के देखें, हया करके देखें, नजरें झुका के देखें। झुकी नजरों में भी कयामत का असर होता है, हुस्न और निखर जाता है शर्माने से। अल्लाह मुझे और आपको सही शर्मो हया, महमूद शर्मो हया की तौफीक दे और जो मज़मूम है उससे बचाए। अकूलु कौली हाज़ा व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जज़ाकुमुल्लाह खैर। जब आप मजलिस से उठें तो मजलिस के कफारा की दुआ पढ़ लिया करें। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका।